Hi guys, welcome back to my channel. This is Ananya here and you are watching Interior Mata and welcome to our most requested video. आप में से बहुत लोग मुझे Instagram में DM करते हैं या फिर email करते हैं या फिर messages करते हैं कि अनन्या we want to become an interior designer and then वो जो part था वो मैंने already cover कर लिया था, but then you ask me how to start your own business into this field. बहुत लोगों को job नहीं करना होता है, they want to start their own business. I started my business in 2020 mid COVID and उससे पहले मेरा obviously YouTube चैनल था. My journey was very different. Another day I will share my journey. But आज आपको मैं बताऊंगी how you can start your own business. So that this video, this series is going to be in parts. So आप weekly एक video expect कर सकते हो and I want you to follow through ताकि इसमें बहुत सारे parts है. It cannot be casually मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. इसके ऊपर बहुत details है और मैं आपको misguide भी I will never misguide you. तो no matter what age you are in and no matter what stage of career you are in right now, you can definitely become an interior designer and start your own business. So we are going to talk about it. So first part, you always ask me about the experience. Do you have to be an interior designer to start your own business? See, my opinion is yes, you should have at least one degree in interior designing and we will talk about the experience later, but at least आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए. But what if you are in your 30s or 40s, you want to start your career or maybe you are in your 20s and आपने अपनी कोई अलग फील्ड में एजुकेशन चालू किया है and still you want to become an interior designer and start your own business later. So I would say if you can manage your way to an architectural firm or an interior designing firm जहाँ पे वो आपको accept करे, because you have to have some practical experience to this field and वो आप तभी कर सकते हो if you are working in the field. Field मतलब आप साइट पे जा रहे हो, मटेरियल सिलेक्शन कर रहे हो, you are doing the detailed drawing, all these things if you are doing, then only you will be able to in future design someone's home. Now I know सबको ये लगता है कि interior designing and interior decoration is same, but these are very two different field. Interior designing आपको एक education के साथ आना होता है, but interior decoration जो है, the word decoration means that you can become an interior decorator without any prior experience or degree. If you have very good aesthetics, you should try and work into this field. I would say कि अगर आप एक architectural और interior designing firm में at least 2 साल काम कर ले, so your basic knowledge will be done and then site पे आप काम कर लो तो आपको site कैसे execute किया जाता है, because later on you have to provide services to your client and for that you need to have some basic experience, right? Client आपको आके कुछ पूछ रहे हैं and if you don't have answers to it, then there is no point of starting your own business. Just शौक है इसके लिए मत कीजिए. Have some basic knowledge and then you can slowly build in. Next part is experience, very sensitive topic. मैं आजकल देखती हूँ कि कॉलेज से freshers निकले हैं, they start their own interior designing business. कौन सफ़र करता है इसमें? Definitely the clients सफ़र करते हैं क्योंकि if they are hiring you and later on the person also whoever have started the business, क्योंकि client को एक time के बाद they are very knowledgeable, right? अगर if they are in their 40s, they are already have researched the market and probably they are going to take opportunity. बहुत सारे लोग comment section में बताना आपके साथ ऐसा हो चुका है. They will not give you the full money or they will treat you like a kid and हालांकि आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया होगा या फिर शायद आपके लिए आपने अपना 200% दिया होगा, but at the end of the day if you are starting a business or doing something, you need money to run it, right? You need to survive in the industry. For that, for sure you need some experience. At the same point of time you need some connection as well. Now not all of us are blessed. मैं बिल्कुल ही scratch ground level से मैंने अपना career चालू किया था. I had zero contacts. I live in Gujarat. I'm a Bengali. मैं कोलकाता से यहाँ पे आई हुई हूँ and I have a decently successful business considering कि I had the backup of my YouTube. तो आप लोग मुझे YouTube में देख रहे थे and reached out to me. That is how my business started. But a person who has zero contact doesn't come from a old money or not a second generation or third generation of business, उनके लिए client ढूंढना बहुत difficult होगा. So the experience comes plays a huge role in this. अगर आपके पास एक अच्छी कंपनी का 4-5 साल की experience है, in that case you can pitch
your projects to the upcoming clients. And remember that whenever you are taking experience, designing is just the, I would say, 20% of a project. Most जो project है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा complications आते हैं वो है execution part में. So अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, focus execution में भी रखना, not only the designing, क्योंकि उसमें जो technical चीज़ें पता चलती है वो designing के through नहीं पता चलता. Designing is just on the software, sitting, adding technical details. बस वही चीज़ जब आप साइट पे एग्जीक्यूट करने जाओगे, you will face at least 10-15 problems. वो problem solving attitude आपके पास होना चाहिए. So experience, as per my suggestion, have 5 years of experience. मैंने कोलकाता में I had my job experience, then in Mumbai, and I have worked in commercial and residential projects as well. I have worked with OYO hotels. I have worked in a different field. तो मेरे लिए, and my first job was on site as a site manager and designer. So मेरे लिए वो एक बहुत ही positive experience था. So now third problem I would say you should have a problem solving attitude. Now interior designing कौन करवाता है? जो पहला घर या फिर दूसरा या तीसरा घर ले रहे हैं and they want to get their home somehow beautified. वो चाहते हैं कि आपका घर जो है वो कौन आपको हायर करेगा, राइट? इफ यू आर डिजाइनर, सिंपल थिंग, कौन आपको हायर करेगा? किसी ने नया घर लिया है या फिर एग्जिस्टिंग घर पे उनको रिनोवेशन चाहिए, तो ये लोग आपको हायर करने वाले हैं. दैट इज द सिंपलेस्ट वे आई कैन टेल यू. नाउ जब आप आपके पोर्टफोलियो लेके उनके पास जा रहे हैं एंड यू आर शोइंग देम दैट आई हैव डन सो वर्क एंड मैं आपके लिए भी अच्छा डिजाइनिंग बना सकती हूँ, दिस विल बी माई चार्जेस. बट तब आपको वो पूछेंगे मेरे पास ये वार्डरोब है, राइट? मुझे इसको कुछ करना है, कुछ डिजाइन करना है, कुछ चेंज करना है. मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स थे इंक्लूडिंग मी, लाइक आई एम 4 feet 10 inches. तो मुझे ऐसे क्लाइंट्स ने बताया कि माई मॉम हैज अर्थराइटिस, माई डैड हैज हार्ट प्रॉब्लम. ये सारी चीजें थ्रू इंटीरियर आप कैसे सॉल्व करोगे? सो इट्स अ वेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड एज वेल. अगर आपके पास ये है, यू जस्ट डोंट want to become like a famous person. If you want to be not famous, successful, you have to have a problem solving attitude. अगर आपके पास वो नहीं है, then don't come to any creative field. You will not be successful. शायद आपको projects मिल जाए, but अगर आप किसी के life को easy नहीं बना रहे हो, so why should they hire you? They will hire a person जो उनकी life को easy बना रहा है. That should be your target, right? Problem solving attitude आपके पास होना चाहिए. Luckily हम Indians में बचपन से ये भरा पड़ा है. हम हमेशा नेबर्स को हेल्प करते हैं. कोई भी चीज है, कोई फ्रेंड आता है, उसके पास कोई प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करते हैं. ज्ञान तो हम बहुत दे सकते हैं. सो हमारे लिए ये बाई बर्थ है. लेकिन अगर आपके पास नहीं है, ट्राई टू गो इनटू टेक्निकल फील्ड रेदर देन इंटीरियर डिजाइनिंग, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग जो माइंडसेट है वो बहुत होता है. मैं बहुत लोगों की इंटरव्यू लेती हूँ, मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं. आई ट्राई टू लुक आउट फॉर दिस क्वालिटी, क्योंकि कभी कभी अगर क्लाइंट आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट बता रहा है टू वन ऑफ माई डिजाइनर, अगर आप उसको जस्ट बोल दो कि नहीं ये तो कोई बात ही नहीं है, ये आपकी गलती है या फिर ये आपकी एटीट्यूड है या फिर ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, दैट कैन नॉट बी योर आंसर. यू हैव टू empathize to the problem, and it may be very weird. Sometimes you will get very weird problems, but you understand it is their problem. Like probably you will have some weird problems. So it's better to understand those very closely, put your feet into their shoes and try to think their way and solve that problem. Just don't dismiss it. You have to be very loyal to your job. I know guys, I know. We live in an industry जहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी इस मार्केट में काम कर चुके हैं, no one is loyal to anyone. Interior designing आजकल के दिन में in an architectural business also, somehow it is business of what I have noticed with my experience, that third and fourth generation of business are running and they are very successful because उनके पास वो बैकअप था. लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हो जो you have 4-5 years of experience starting your own business and आप कोशिश कर रहे हो कि you are not loyal to your client, you are not loyal to your projects, you are not loyal to, you are doing it for money, then ये आपको success नहीं देगा. Why I'm saying this? Because if you have some amount of experience, you know this. अगर नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि आपके पास बिल्कुल ही इस मार्केट की experience नहीं है. So there is a thing called commission, right? So now commission क्या होता है? बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स, बड़े बड़े डिजाइनर्स सब ये काम करते हैं, बट आपको चीजें सजेस्ट करेंगे. दे हैव टाई कॉन्ट्रैक्टर्स. तो आप एक क्लाइंट हो, आपने बोला कि सी फॉर एग्जाम्पल मी, हम कमीशन में इंटीरियर
ज़्यादा कमीशन पे काम नहीं करती है। वी टेक टर्नकी प्रोजेक्ट्स, जितने भी एडवांटेजेस होते हैं हम लोग डायरेक्ट क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। बट ये सेम केस नहीं है, 99% केसेस में सेम नहीं है। मान लीजिए डिजाइनर ने आपको बोला, आपने बोला कि हम बहुत पैसे बचाएंगे, लेट्स टेक यू टू अ डिफरेंट स्टोर। वहाँ पे डिजाइनर ने आपको सजेस्ट किया कि ये पैनल्स बहुत अच्छे हैं। प्रोबेबली वो पैनल जो भी XYZ प्राइस की है, एंड इन 99% केसेस में डिजाइनर की एक कमीशन होती है 10%, 15%, 20% टू सेल दैट प्रोडक्ट। सो इन अ वे दे आर वर्किंग, आई वोंट से सेल्समैन, बट एज अ इनडायरेक्ट प्रमोशन यहाँ पे हो रहा है। सो आई डू गेट दिस रिक्वेस्ट ऑल द टाइम कि मैम आप हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए, हम आपको 10%, 20% कमीशन देंगे, हम आपको ये देंगे, रोम की ट्रिप देंगे, पेरिस की ये देंगे। आई कांट अफोर्ड एनी ऑफ दिस। ये काफी लिक्रेटिव ऑफर्स भी होते हैं ब्रांड्स की तरफ से, बट मेरी एथिक्स ये नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इफ आई एम गेटिंग अ डिस्काउंट आई शुड गिव इट टू माई क्लाइंट, ताकि उनका घर एक सर्टेन प्राइस में और बहुत फेथफुली हो जाए। आई डोंट बिलीव इन कमीशन सिस्टम। सो अगर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डिजाइनर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इफ यू हैव दैट एथिक्स, आई वोंट से जो अलग लोग, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इट इज नॉट माई एथिक्स। अगर आप ये मेंटेन करके चले तो आपके लिए बहुत ही अच्छी एक सक्सेसफुल बिजनेस अब बहुत अच्छे टाइमलाइन पे क्रिएट कर सकते हो। एंड यू कैन टेल द क्लाइंट कि हम कमीशन नहीं ले रहे, सो वी विल चार्ज अ लिटिल हायर फॉर दैट। बट एक बार बिजनेस स्टेबल हो जाए तभी जाके ये सब आप बता सकते हो, नॉट इन द अर्लियर स्टेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, इफ यू आर क्रिएटिव देन ओनली कम टू दिस फील्ड, अदरवाइज जस्ट फॉरगेट इट। बहुत सारी फील्ड है, दिस फील्ड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, राइट? आपने इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में मेरे वीडियोस देखते होंगे, या फिर आप बहुत लोग आजकल कंटेंट बनाते हैं, आप देखते होंगे, आपको लगता होगा कि यार बहुत इजी होगा ये फील्ड, बट इट इज नॉट ट्रू गाइस। लाइक एनी अदर बिजनेस टू दिस डे या फिर एनी अदर फील्ड टू दिस डे, ये फील्ड भी काफी टफ हो गया है। बी इट कंपटीशन, बी इट यू नो देयर आर 100 रीजंस, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी चीजें। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, इफ यू आर रियली अ क्रिएटिव पर्सन, गो अहेड एंड स्टार्ट योर बिजनेस इन इंटीरियर डिजाइनिंग, बिकॉज इन दैट केस आपके पास क्लाइंट कुछ यूनिक चीजें एक्सपेक्ट करेंगे। लाइक जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं, द फर्स्ट थिंग दे आस्क मी कि अनन्या एक घर बना दीजिए जो ट्रेडमो होता है, यू नो द ट्रेडमो, द ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, मिनिमलिस्टिक मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल पार्ट, जो मेरी स्टाइल ऑफ डिजाइनिंग है, वी प्रैक्टिस ऑन दैट। तो हमारे पास जो भी क्लाइंट आते हैं वो यूनिक रिक्वायरमेंट लेके आता है, एंड आई बिकम सो हैप्पी। अरे यार, मतलब यहाँ पे कुछ नया करने को मिल रहा है। दैट इज द क्रिएटिव सेल्फ ऑफ मी हु रियली गेट्स एक्साइटेड टू दिस डे के लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, लेट्स क्रिएट समथिंग न्यू। मेरे सारे डिजाइनर्स बहुत हैप्पी हो जाते हैं। सो आई गेट ऑल दोस क्लाइंट्स बिकॉज आई जेन्युइनली मैनिफेस्टेड ऑल दोस क्लाइंट्स। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत प्रोजेक्ट्स मैं देखती हूँ, एंड आई वुड से कि 80% जो डिजाइनर्स आज के मार्केट पे काम कर रहे हैं, दे यूज द बेसिक प्रोडक्ट, द बेसिक क्वालिटी, द बेसिक डिजाइन, द बेसिक थिंग्स एवरीवेयर, राइट? डोंट टेक मी रॉन्ग, में हमारे पास भी वैसे क्लाइंट्स आते हैं, वी टेक इट बिकॉज वी हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट। बट हमारी मेन यूएसपी वो नहीं है, हमारी मेन यूएसपी डिजाइनिंग ही है, एंड देन कैरीड फॉरवर्ड द डिजाइनिंग, यू नो, इंटीरियर माता एक्सक्लूसिव जो डिजाइन हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एक्सक्लूसिवली डिटेल डिजाइन। बट अगर आप एक इंसान हो जिसको ऐसे अप्रोच आ रहा है, राइट, कि अनन्या मैं पकड़ लेती हूँ कि मैं आप हो, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वेरी क्रिएटिव होम, एंड आप बेसिक चीजें यूज कर रहे हो, दैट वुड बी, आपके क्लाइंट रहेंगे नहीं। आई विल गिव यू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल फॉर इट। वन ऑफ माय क्लाइंट रिसेंटली केम एंड sat down in front of me, and उन्होंने मुझे रिक्वायरमेंट बताया। रिक्वायरमेंट was very good, the client was very good, the requirement was very good. They needed a very minimalistic traditional home. Follow the word traditional, right? Minimalistic traditional, that is ट्रेडमोल जो हम करते हैं। But उन्होंने जो आर्किटेक्ट को हायर किया था, एंड दे हैव पेड आई थिंक अराउंड मोर देन 1.5 लाख रुपीज। उन्होंने वो ब्रीफिंग का कुछ किया नहीं, दे डिजाइंड अ होम, लाइक उन्होंने 3D प्रेजेंटेशन दिया, दे डिजाइंड अ होम व्हिच इज फुल्ली मॉडर्न, एंड उसके साथ ट्रेडिशनल की टीवी नहीं थी, थोड़ा सा भी कुछ डिजाइन नहीं था। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड टू सी दैट कि व्हाई, इफ यू आर नॉट अ क्रिएटिव पर्सन, अगर आपके क्लाइंट की ब्रीफिंग आपको नहीं पता चल रहा है, तो डोंट कम and you know ruin this field. आपके certain aesthetics है, don't push it to your clients कि आप ले लो मॉडर्न, ले लो मॉडर्न, ले लो मॉडर्न, ले लो क्योंकि मैं बहुत अच्छा मॉडर्न डिजाइन करता हूँ। Don't do it. You should understand your clients' requirement
and be very creative about it and design something unique. That should be your target. तभी जाके अब आगे सक्सेसफुल होंगे. So these are the 5 points guys मैंने बताया, and with my practical experience मुझे लगता है कि ये सारी एक्सपीरियंस के साथ ही जाके आपको मिलेगा. I am here to help you out throughout your business journey और your interior designing career. मैं चाहती हूँ मैं आपको हेल्प करूँ और ये सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे because I've been thinking how to help this industry whatever knowledge I have gained, because मैंने भी बहुत हार्ड वर्क किया है and वो हार्ड वर्क मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करना. So we'll follow through this video. अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखना है प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इंस्टाग्राम में भी इसके क्लिप्स एंड एवरीथिंग आ जाएंगे. सो गो अहेड और फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. दैट्स इट फॉर टुडे गाइस. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो फर्स्ट स्टेप है टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको क्या करना है. तो आप जो नोटिफिकेशन बटन है उसको ऑन रखिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वही बात करेंगे पूरे वीडियो में. एंड मोर यू आस्क मी क्वेश्चंस, आई विल अंडरस्टैंड कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको इसके बारे में जानना है. सो आई विल मेक मोर वीडियोज ऑन दैट इन शॉर्ट्स और in YouTube video. So make sure that you are doing it. I love you guys. I am so excited for the next generation of designer, no matter what age you are in. Let's make this interior designing space a better place. So see you in my next video guys. Love you. Bye bye.